Good morning and Jai Hind, my dear students. Children, in the last class, we have just discussed the microbes in human welfare. Actually, पिछले दो क्लासेस में बच्चों हम लोगों ने माइक्रोब्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखा in this particular chapter, that is microbes in human welfare. Today, we are going to recapitulate each and every criteria related to beneficial aspects of microbes. So, children, we have to discuss about microbes in household products, microbes in industrial products, microbes in sewage treatment plant, microbes in production of biogas, microbes as biocontrol agents, and microbes as biofertilizer. So, my dear kids, in the last two classes, in the last class, actually in the second last class, we have discussed about the microbes in household products, industrial products, and in the last class, we have seen the role of microbes in sewage treatment, in the production of biogas, that is biogas plant, as biocontrol agent, and microbes as biofertilizer. Let us recapitulate each and every criteria of the beneficial aspect of microbes. So, children, if we talk about the household products, then we have seen that the special Swiss cheese is manufactured by use of a bacterium, that is Propionibacterium shermani, and at the same time we have seen different kind of organic acids. So see here, I have told you Aspergillus niger, citric acid, Acetobacter aceti, acetic acid, Clostridium botulicum, butyric acid, and Lactobacillus lactis, that is लैक्टिक एसिड. आप जानते भी हैं लैक्टोबैसिलस को लैब बैक्टीरिया कहा जाता है बच्चों, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि इन 5-6 क्राइटेरिया सबको 5 या 6 क्राइटेरिया जो है इन सभी को हम लोग को आज ही की क्लास में खत्म कर लेना है और चीजें आपको समझ में भी आनी चाहिए. दैट्स व्हाई चिल्ड्रन पुट योर 100% कंसंट्रेशन टुवर्ड्स मी in my class. Okay, now see here the lactobacillus in yogurt. You have seen that lactobacillus increasing the enhancing the nutritive value also. Nutritive value of milk ये बढ़ा देते हैं. विटामिन B12 को बढ़ा के ये उसको योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं, कर्ड और योगर्ट. तो अल्कोहलिक बेवरेजेज में हम लोगों ने देखा था माइक्रोब्स का यूज, स्पेशली ईस्ट का यूज हम लोगों ने देखा था बच्चों, बिकॉज इन ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस and the end products are ethyl alcohol and water. और ethyl alcohol जो है that is the chief ingredient of beer, whiskey, brandy and rum. So we have seen their uses in that particular. Here we are seeing the fermenters. ये fermenters हैं बच्चों जहाँ पे ग्लूकोज को फर्मेंटेट करके फर्मेंटेशन करके जो है बदला जाता है एथिल अल्कोहल में. That is the fermenter. Okay, now see the distilled beverages don't contain any nutritional compound. उनका डिस्टिलेशन हो चुका होता है इसीलिए रिलेटिवली हार्श भी रहेंगे. और जबकि जो अनडिस्टिलेटेड बेवरेजेस हैं वो हेल्थ फ्रेंडली भी है और हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशनल कंस्टिट्यूएंट भी रहेंगे उसके अंदर. मेडिसिन वी हैव सीन द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन मेडिसिनल सेक्टर आल्सो चिल्ड्रन. In medicinal sector, we have seen that the first antibiotic penicillin was manufactured by Alexander Fleming in 1928, and by the effort of Alexander Fleming and Florey, several American soldiers have been saved during Second World War, and that's why in 1945, after the completion of Second World War, Alexander Fleming as well as Florey were awarded by Nobel Prize. They manufactured the first antibiotic penicillin by using a fungus Penicillium notatum, and you are seeing here the penicillin, that is the first antibiotic. And children, here you are seeing the streptokinase. Streptokinase, that is the clot buster. इसको क्लॉट ब्लस्टर के रूप में इस इंजेक्शन को यूज किया जाता है जब हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड का क्लॉट बन जाता है, धक्के बन जाते हैं. Then streptokinase is being used obtained by the microbe Streptococcus cocci. And now see here clot busting. Okay, this is the variety of yeast children, Monascus purpureus. यह ईस्ट की एक वेराइटी है जिसको मोनास्कस परप्यूरियस कहा जाता है और इससे बच्चों स्टैटिन तैयार किया जाता है. आप देख रहे हैं यह स्टैटिन है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है बच्चों. इसको ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन भी इस पर आधारित पूछा हुआ है नीट में. मोनास्कस परप्यूरियस इज अ यीस्ट यूज्ड कमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ, सही जवाब होगा
blood cholesterol lowering statin. Blood cholesterol lowering agent, that is statin, is obtained by the use of a yeast that named as Monococcus purpureus. So children, in this way we have seen the microbes as household products, industries and in medicinal sector. Now see the role of microbes in wastewater treatment, that is sewage treatment. We are seeing here that sewage treatment is carried out in two steps. सीवेज ट्रीटमेंट दो स्टेप में होता है बच्चों. सबसे पहले तो फिजिकल रिमूवल होता है लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स का. इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिज इज रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड देन सेडिमेंटेशन इज फॉलोड टू सेडिमेंट द ग्रेट. पहले हम लोग जो फ्लोटिंग डेब्रिज रहता है उसको फिल्ट्रेशन करके अलग कर लेते हैं और फिर सेडिमेंटेशन करके जो बड़ी चट्टाने हैं, पत्थर है या ग्रीट है, उसको सेडिमेंट कराते हैं. यह सब बच्चों प्राइमरी ट्रीटमेंट का पार्ट है. और जबकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम माइक्रोब्स को इन्वॉल्व करते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई के फ्लॉक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वह डेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में बदल देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. तो देख रहे हैं आप यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को अलग अलग दिखाया गया है. प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोगों ने पहले फिल्ट्रेशन करके फ्लोटिंग डेब्रिस को रिमूव किया और फिर सेडिमेंटेशन करके ग्रिट को सेडिमेंट कर लेते हैं और फिर इफ्लुएंट को हम लोग एक दूसरे एरेशन टैंक में डालते हैं. एरेशन टैंक और सेटलिंग टैंक के थ्रू जो है यहाँ पर ये बैक्टीरिया और फ्लक्स को यहाँ मिलाया जाता है, फंजाई के फ्लक्स को. और बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजर्स होते हैं, वह डेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में बदलते रहते हैं. और जब बीओडी लेवल काफी कम हो जाता है तो फिर इसको एक स्लज को एक्टिवेटेड स्लज को, जिसमें कि हम लोग थोड़ा सा इनाकुलम मिलाए रहते हैं, माइक्रोब्स को मिलाए रहते हैं और उस एक्टिवेटेड स्लज को हम दूसरे स्लज डाइजेस्टर में डालते हैं जिसको बोलते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर. एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में दूसरे काइंड का बैक्टीरिया ग्रो करता है जो कि एनारोबिक काइंड का बैक्टीरिया है और जिसकी वजह से एरोबिक बैक्टीरिया का भी डाइजेशन हो जाता है और बायोगैस, मैन्योर्स और ये तमाम चीजें प्रोड्यूस होती हैं एज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में. बायोगैस वगैरह यूज होते हैं और साथ में जो मेन हमारा थीम है कि हमारा सीवेज को ट्रीट करना है, वो सीवेज ट्रीट हो चुका होता है और फिर उस ट्रीटेड सीवेज को जो है उस लिक्विड को रिवर या लेक्स या किसी भी वाटर बॉडीज में जहां से हम इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को जोड़े हुए हैं वहां पर सप्लाई करते हैं. सो इन दिस वे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आर डूइंग वर्क टू जस्ट ट्रीट द सीवेज ऑफ द होल सिटी. And now see the microbes in biogas production. As you know, children, that biogas plants are limited to rural areas only due to the availability of cattle and availability of fields also. वहाँ पर fields हैं और cattle की availability है, cow dung वगैरह आसानी से मिल जाता है, जिसके वजह से biogas plants are successfully running in the rural areas only. And here you are seeing the methane is predominant gas present in the biogas mixture. And certain bacteria grow under anaerobic condition, producing large amount of methane along with carbon dioxide and hydrogen. Children, you know that these bacteria are said to be archaebacteria and which produce the gaseous mixtures and collectively known as methanogens. मीथेन को जनरेट करने के कारण ही इनका नाम मिथेनोजेंस रखा गया. एक आर्कीबैक्टीरिया की वेराइटी और आप पढ़ चुके हैं मिथेनोकोकस. तो बच्चों यह देखिए बायोगैस प्लांट. बायोगैस प्लांट में एक 10 से 15 फीट गड्ढा, 10 से 15 फीट का एक गड्ढा, एक टैंक होता है, दैट इज वेल नोन एज डाइजेस्टर टैंक. और एक इनलेट और एक आउटलेट लगे होते हैं. इनलेट से हम डंग और वाटर के मिक्सचर को अंदर भेजते हैं इस डाइजेस्टर टैंक में. और इस जो ये फ्लोटिंग ऊपर ये फ्लोटिंग टैप लगा हुआ है, यह पीतल का एक पिस्टन होता है बच्चों. इसको हम प्रेशराइज करने के लिए यूज करते हैं ताकि हाई प्रेशर में जो है बैक्टीरिया का, फंजाई का एक्शन हो, स्पेशली आर्कीबैक्टीरिया का यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, आर्कीबैक्टीरिया का एक्शन हो मिथेनोजेंस और मिथेनोकोकस का, और जिससे ये बायोगैस का मिक्सचर प्रोड्यूस होता है. यहाँ पर ये देखिए गैस, ये गैस पाइप लगा हुआ है जहाँ से जो है हम इसको नियर बाई हाउसेज में सप्लाई करते हैं. ये गैस होल्डर है और ये देखिए जो यहाँ पर यूज्ड स्लरी है उसको हम आउटलेट के थ्रू बाहर निकालते हैं और फिर खेतों में डाल देते हैं एज द सप्लीमेंट. वो जो है ऑर्गेनिक सप्लीमेंट के रूप में, मेन्योर के रूप में, या फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए यू कैन यूज द वर्ड कि टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. हम उसको सॉइल में डाल देते हैं और फिर दूसरा डंग और वाटर का मिक्सचर इनलेट से डाइजेस्टर टैंक में अंदर डालते हैं.
So children, you are seeing here the functioning of biogas plant, and it is restricted to rural areas only because of the availability of kettles, availability of dungs, as well as the availability of fields also. Children, so many times it has been asked कि which organizations are involving in the maintenance of biogas plant in India. So you should know that IARI, Indian Agricultural Research Institute, and KVIC, that is Khadi and Village Industries Commission. Both organizations are involved in the maintenance of biogas plant in India. So you should know IARI and KVIC. Children, now we are going to again recapitulate the microbes as biocontrol agent. देखिए कहाँ कहाँ पर हम लोग माइक्रोब्स को देख रहे हैं। माइक्रोब्स को हम लोगों ने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के रूप में देखा, अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड्स, सिट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हुए, एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस से लैक्टिक एसिड और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूट्रिक एसिड, और जबकि सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ब्यूट्रिक एसिड हो गया, और जबकि एसिटोबैक्टर एसिटाई से एसिटिक एसिड, आप जानते हैं विनेगर या सिरका। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने माइक्रोब्स का यूज मेडिकल में देखा, पेनिसिलिन बनाने के लिए, स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाने के लिए, और पेनिसिलिन द फर्स्ट एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोकाइनेज द क्लॉट बस्टर, स्टैटिन बनाने के लिए, दैट इज द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने माइक्रोब्स का रोल मेडिसिन में भी देखा। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो माइक्रोब्स जो है ब्रूअरीज और बेकरीज में स्पेशली ईस्ट का यूज किया जाता है, और ब्रूअरीज में फर्मेंटर्स के थ्रू फर्मेंटेशन का प्रोसेस करके जो है एथिल अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे बियर, विस्की, ब्रांडी और रम बनाया जाता है। उसमें हम लोगों ने देखा भी कि कुछ एल्कोहलिक बेवरेजेस डिस्टिलेटेड और जबकि कुछ अनडिस्टिलेटेड होते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने माइक्रोब्स का रोल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी देखा कि किस तरीके से पूरे शहर का सीवेज माइक्रोब्स के रोल से साफ किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, और तब उसको वाटर बॉडीज में ले जाकर मिलाया जाता है। तो हमारे हेल्थ के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोगों ने माइक्रोब्स के थ्रू अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस किए, दैट इज द बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में काऊ डंग को यूज करके, काऊ डंग और वाटर के मिक्सचर को यूज करके माइक्रोब्स की सहायता से, आर्की बैक्टीरिया की सहायता से, मिथेनोजेंस और मिथेनोकोकस की सहायता से हम लोगों ने बायोगैस प्रोड्यूस करते हुए देखा कि किस तरीके से बायोगैस प्लांट्स में बायोगैस प्रोड्यूस होते हैं, जो कि अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है टू सेव coal and petroleum, which is non-renewable resources, which we can't recycle through any physical, chemical or biological means. So children, let us discuss about microbes as biocontrol agents. The biological control, okay, it is the practice or process by which an undesirable organism is controlled by means of another organism. ध्यान दीजिएगा, इसको बायो कंट्रोल एजेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो पेस्ट हैं या इंसेक्ट्स हैं या पैथोजेंस हैं जो हमारे क्रॉप को, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको टारगेट करके हम लोग इसको यूज करते हैं, उनको किल करने के लिए। क्योंकि ये बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं या ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करना है, जो कि पेस्ट हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो पैथोजेंस हैं, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं, उनको ये मारने का काम करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। दैट्स व्हाई these microbes are used as biocontrol agent. So children, microbes as biocontrol agent, we have seen that the use of microbes as biocontrol agent, many microbes are used as biocontrol agents for controlling of many diseases, like particularly the soil-borne diseases. Many fungi and bacteria are used as biocontrol agents. कुछ एग्जाम्पल देखिएगा, ट्राइकोडर्मा, ग्लियोक्लेडियम और एम्पिलोमाइसी are the few fungal biocontrol agents, whereas agrobacterium, radiobacter, and Bacillus subtilis and Pseudomonas fluorescens are the few bacterial biocontrol agents. See here the agent and targeted pest. हमने बताया भी था आपको, Bacillus thuringiensis, बीटी कार्टन बनाया जाता है इससे, आगे के कई चैप्टर्स में इसका जिक्र करेंगे हम लोग। तो Bacillus thuringiensis, ये Lepidoptera, Diptera और Coleoptera, which are moth, butterflies, फ्लाइज और बीटल्स, एफिड्स और लोकस्ट के लिए यह यूज किया जाता है बैसिलस thuringiensis। और जबकि फंजाई हैं वर्टिसिलम, लिकानी
और इसके अलावा इसके बारे में मैंने बताया था आपको, मेटाराइजियम, एनिसोप्ली, यह सब जो है एफिड्स, लोकस्ट के लिए यूज किए जाते हैं, इनकी कई वेराइटीज। और जबकि यह काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत से वायरसेस के लिए, वायरसेस अगर टारगेट पेस्ट है तो यूज किया जाता है यहाँ पर न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोस वायरस। बेसिकली इट इज यूज वेरियस पेस्ट, ये बहुत से इंसेक्ट्स के लिए और बहुत से पेस्ट के लिए इसको यूज किया जाता है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रो वायरसेस को। और जबकि यहाँ पर और भी देख रहे हैं पक्सिनिया वगैरह के लिए, अल्टरनेरिया वगैरह के, ये सब जो है तमाम इस तरीके के माइक्रो हर्बिसाइड्स हैं जो यूज किए जाते हैं नुकसान पहुंचाने वाले फंगस को मारने के लिए। सो चिल्ड्रन, यू आर सीइंग हियर नाउ microbes as biocontrol agents and let us see the microbes as biofertilizer। अब हम लोग माइक्रोब्स का यूज बच्चों बायो फर्टिलाइजर के रूप में देखने जा रहे हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा इसको, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। जब हम किसी माइक्रोब्स को इसलिए यूज किए करें जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायो फर्टिलाइजर। नॉर्मली वी नो कि फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। हमें सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर यूज करना होता है। अगर कोई बायोलॉजिकल एजेंट है या ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है, देन ऑटोमेटिकली इट वुड बी कॉल्ड एज बायो फर्टिलाइजर। उसको ऑटोमेटिकली हम बायो फर्टिलाइजर कहेंगे। और यहाँ पर भी देखिए माइक्रोब्स का ही रोल आएगा बच्चों, और स्पेशली साइनोबैक्टीरिया का। जो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक, एनाबेना, ऑसिलेटोरिया, यह बहुत ही ज्यादा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे होते हैं, इसीलिए इनको बायो फर्टिलाइजर्स कहा जाता है बच्चों। इसके अलावा आपने राइजोबियम का नाम सुना होगा, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम इज द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लिव्स एज द सिम्बियोंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ पल्सेस, और यू कैन से लेग्यूम्स। जो दलहनी वाले पौधे होते हैं बच्चों, लेग्यूमिनोसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उनके रूट के नोड्यूल्स में यह बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। और इसकी लाइफ साइकिल भी आप पढ़ेंगे, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में आगे आएगा। तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम इज अ सिम्बियोंट एंड इट फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है बच्चों जो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए जरूरी है, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में। और जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, ध्यान दीजिएगा, जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है यह केवल एनारोबिक मीडियम में काम करता है बच्चों। और जबकि राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम एक एरोबिक बैक्टीरिया है, तब यह कैसे रूट नोडल्स में रह पाता होगा? क्योंकि रूट नोडल्स में जो है लेग हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, और लेग हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन लेग हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइंड हो जाता है, जो लेग्यूम प्लांट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए उसको लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इसीलिए देखेंगे आप तो रूट नोड्यूल्स रेडिश कलर के दिखाई देते हैं पल्सेस के, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन व्हिच कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड मेक्स द मीडियम एनारोबिक व्हिच इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम। जब तक मीडियम एनारोबिक नहीं होगा तब तक नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लिए एक्टिव मीडियम नहीं बनेगा, क्योंकि वह एनारोबिक मीडियम में ही एक्टिव होता है बच्चों। तो इस तरह का तरीके से आप देख रहे हैं माइक्रोब्स के अलग अलग रोल है बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में। देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई, माइकोराइजा का भी एग्जांपल है, आर 3 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। इनको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया का कहाँ पे रोल आता है बच्चों? एक जगह पर, जबकि बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का एसिमिलेशन होता है प्लांट्स में। ये पहला स्टेप होता है नाइट्रोजन साइकिल का, दैट इज एसिमिलेशन, वहां पर भी बैक्टीरिया का रोल है। सेकेंड स्टेप है अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन दैट इज डेड एंड डिकेइंग पार्टिकल्स का डिकम्पोजिशन। तो अमोनिफिकेशन आप जानते ही हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द स्कैवेंजर, they are the decomposers, they naturally decompose the dead complex and organic material into inorganic material। तो आप देख रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल का दूसरा स्टेप जो अमोनिफिकेशन है, वहां पर भी बैक्टीरिया का उतना ही रोल। तीसरा स्टेप है बच्चों नाइट्रिफिकेशन, इन विच अमोनिया इज जस्ट कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, NO2- and NO3-, and this step is also catalyzed by nitrifying bacteria such as Nitrosomonas and Nitrobacter। And the fourth step, children, fourth step is denitrification, in which the nitrite and nitrate
are again converted into atmospheric nitrogen, and this step denitrification is also stimulated by certain denitrifying bacteria such as Pseudomonas and Micrococcus. So children, if we see the nitrogen cycle, then we are seeing the role of bacteria in each and every step, which are ammonification, then sorry, assimilation, ammonification, nitrification, and denitrification. And in all the four steps of nitrogen cycle, bacteria are extensively being used. So you are seeing here microbes as biofertilizer. तो मैंने बैक्टीरिया के बारे में बताया, कुछ और एग्जांपल बैक्टीरिया के नीचे लिखे हुए हैं यहाँ पर देखिएगा। राइजोबियम, ये देखिए राइजोबियम, आई हैव टोल्ड यू। Then Azotobacter and Azoospermum are also free soil living bacteria which are responsible for the increasement of soil fertility. यहाँ देखिए राइजोबियम इज अ soil habitat bacterium, soil में रहने वाला है, which is able to colonize the legume roots. legume roots में जो है इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपने आप को, and fixes the atmospheric nitrogen symbiotically. और सिम्बायोसिस तरीके से जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते रहते हैं। यही कारण भी है बच्चों कि नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी से वहां पर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। एंड वी नो वेरी वेल दैट अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, और अमीनो एसिड से जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। सो इन दिस वे इन पल्सेस प्रोटीन्स आर abundantly present. Now some other examples we shall discuss, that is the cyanobacteria. Cyanobacteria children you better know that is blue green algae. और यहाँ पर देखेंगे अगर हम cyanobacteria में, तो इसके एग्जांपल्स नॉस्टॉक, एनाबेना और ऑसिलेटोरिया। ये देखिए नॉस्टॉक का डायग्राम दिखाई दे रहा है, देखिए ये फिलामेंटस होते हैं बच्चों। नॉस्टॉक और एनाबेना, इनकी बॉडी फिलामेंटस होती है, डंडी नुमा देख रहे हैं आप, और इसकी बॉडी में कुछ स्पेशल सेल पाया जाता है। ये देखिए एक स्पेशल सेल पाया जाता है, हेट्रोसिस्ट कहते हैं इसको। इस हेट्रोसिस्ट के अंदर ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इस हेट्रोसिस्ट के अंदर ये फिलामेंटस बॉडी है नॉस्टॉक की। नॉस्टॉक और एनाबेना हमेशा एक साथ में रहते हैं और सॉइल को फर्टिलिटी को बढ़ा रहे होते हैं। स्पेशली नॉस्टॉक, एनाबेना एंड ऑसिलेटोरिया आर फाउंड इन पैडी फील्ड। इनको पैडी फील्ड में यूज भी किया जाता है, धान के खेत में, चावल के खेत में इनको यूज किया जाता है नाइट्रोजन के फिक्सिंग को बढ़ाने के लिए। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने माइक्रोब्स का रोल कहाँ कहाँ पर देखा, देखिए ध्यान दीजिएगा। माइक्रोब्स का रोल हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स का रोल इंडस्ट्रियल सेक्टर, थर्ड द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन मेडिसिनल सेक्टर, फोर्थ द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 5 the role of microbes in biogas plant, 6 the role of microbes as biocontrol agents, and 7 the role of microbes as biofertilizers. तो एक हल्का सा रिकैपिचुलेशन में फिर से दे रहा हूं ताकि चीजें पूरी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हमें मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन बताना है, योगर्ट का फॉर्मेशन बताना है, देन ऑल द 4 काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, उनके बारे में हमें बताना है कि क्या क्या एसिड्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के रूप में। इसके अलावा स्विस चीज, प्रोपियानी बैक्टीरियम शर्मानी, दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल चीज, और नॉर्मल चीज के बारे में भी बताना है, दैट इज प्रोड्यूस थ्रू द फर्मेंटेशन बाय ईस्ट, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेब्रेसी, दैट इज वेल नोन एज बेकर्स ईस्ट और ब्रीवर्स ईस्ट। तो माइक्रोब्स के यूज हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में देखते हैं। घरों में छोला मटर फुलाने के लिए ईस्ट का प्रयोग, दूध में छेना फाड़ने के लिए ईस्ट का प्रयोग, खमीर दैट इज खमीर जो कि फर्मेंटेशन करता है जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इसके अलावा दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, आप देखते हैं पूरे दूध में हम दही का थोड़ा सा जामन डालते हैं इनाकुलम के रूप में, और कुछ समय के बाद पूरा का पूरा दूध दही में बदल जाता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया, दैट इज लैम, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। Secondly, in industrial sector, children, we have seen the role of microbes in the production of alcoholic beverages such as beer, whiskey, brandy, and rum, and we have seen the distillated and undistillated kind of alcoholic beverages. And in medicinal sector, we have seen that the first antibiotic penicillin Alexander Fleming ने बनाया था पेनिसिलियम नोटेटम को यूज करके, और जबकि सेकेंड एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन भी बनाया गया
एक बैक्टीरियम को यूज करके स्ट्रेप्टोकोकस को। इसके अलावा मेडिसिनल सेक्टर में ही बच्चों हम लोगों ने स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में देखा। स्ट्रेप्टोकाइनेज विच इज यूज्ड एज क्लॉट ब्लस्टर के रूप में यूज किया जाता है, एंड द स्टैटिन विच इज यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट produced by the use of a variety of yeast, that is Monaskos purpureus. Then after we have seen the role of microbes in sewage treatment plant। और ध्यान रखिएगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का रोल है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का रोल होता है जहां पे बैक्टीरिया और फंजाई के फ्लॉक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है डेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में बदलने के लिए। तो इस तरीके से सेकेंडरी, और जबकि बच्चों टर्शियरी ट्रीटमेंट आपके कोर्स में नहीं था, लेकिन आप जानते रहिए कि टर्शियरी ट्रीटमेंट भी होता है। और जब ट्रीटेड वाटर को हम डायरेक्ट रिवर या लेक में मिला रहे होते हैं तो उससे पहले उसको एक यूवी ट्यूब से गुजारते हैं, अल्ट्रावायलेट ट्यूब से, जिसको क्वार्ट्ज ट्यूब कहा जाता है, क्वार्ट्ज ट्यूब। और जहां पे यूवी रेडिएशन मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से एरोबिक या एनएरोबिक कोई भी अगर माइक्रोब बचा हुआ है, बैक्टीरिया बचा हुआ है, तो वह सब मर जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम कढ़ाई से यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यूज कर रहे हैं, एक भी बैक्टीरिया या माइक्रोब बच न पाए, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट के थर्ड डिग्री को यूज करते हुए, थर्ड डिग्री के नाम को यूज करते हुए इस स्टेप का, टर्शियरी ट्रीटमेंट का नाम थर्ड डिग्री भी रखा गया है, which you will discuss in detail in the higher classes. So my dear kids, in sewage treatment plant we have seen the role of microbes in the secondary treatment. Then after we have just discussed about the biocontrol agent। हम लोगों ने बायोकंट्रोल एजेंट्स को भी देखा कि किस तरीके से ये माइक्रोब्स ही दूसरे पेस्ट को, दूसरे इंसेक्ट्स को या डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हम लोगों ने बायोगैस प्लांट्स भी देखा कि रूरल एरियाज में बायोगैस प्लांट बना के माइक्रोब्स को यूज करके बायोगैस प्रोड्यूस किया जाता है, एंड दैट कैन बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड फाइनली वी हैव सीन द माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स आल्सो। in this particular sector we have seen the bacteria, cyanobacteria and fungi which are being extensively used as a biofertilizer। बच्चों यहाँ पर माइकोराइजा जो दिया है इसको थोड़ा और समझ लें आप। माइकोराइजा that is the symbiotic association between roots of higher plants such as gymnosperms, cycas and pinus with the fungal thallus। As you know that in gymnosperms in some plants roots grow horizontally in the place of vertically, roots grow horizontally and such roots are said to be as coralloid roots। In coralloid roots fungal thallus form the symbiotic association, fungal thallus absorbing the water and minerals from the soil and they take the nutrient from the gymnospermic plant। So mycorrhiza is the symbiotic association between fungal thallus and roots, coralloid roots of higher plants। So this is also the example of biofertilizer। So my dear kids, in this way we have just recapitulated the whole chapter role of microbes। बच्चों इस पर्टिकुलर यूनिट में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोगों ने माइक्रोब्स के हार्मफुल एस्पेक्ट्स को देखा, और जबकि रोल ऑफ माइक्रोब्स में माइक्रोब्स के हम लोगों ने बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स को देखा। यह ऐसे टाइप का चैप्टर है, आप कोशिश करें जरूर कि ये पूरा एक नोट टाइप का अपने आप से एक नोट कर ले, नोट बना लें, ऐसे टाइप का बना लें। रोल ऑफ माइक्रोब्स पे एक ऐसे समझ लीजिए लिखने के लिए है। आप रोल ऑफ माइक्रोब्स पे ऐसे लिख रहे हैं तो किस किस सेक्टर में बात करना है याद रखें। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, देन माइक्रोब्स इन बायोगैस प्लांट, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। So thank you very much my kids, and in the next class we shall discuss the next topic, next chapter special start। Thank you very much।